الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معززات، ماں، بہنوں اور بیٹیوں، تذکرہ پاک ہو رہا تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کا. ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ وہ پردے کی اتنی پابند تھی کہ جب وہ طواف کرتی تھیں اس وقت بھی پردہ کرتی تھیں، اور حجر اسود کو چومنا کتنا ثواب کا کام ہے. اور جس دور میں اماں جی موجود تھیں ان کی کتنی تکریم ہوتی ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہوں گے، لیکن وہ حجر اسود کو چومنے اس لیے نہیں جاتی تھی کہ وہاں پہ غیر محرم ہوں گے. اور ایک تابعی حضرت اسحاق نبینا صحابی ہیں، ان سے بھی پردہ کر رہی ہیں. پوچھا گیا وہ تو نبینا ہے، کہا ام المومنین ہو، وہ تو نبینا ہے، میری تو نظریں ہیں. یہ احتیاط اماں جی کی. اور وہ حجرہ جو گھر بھی آپ کا اپنا ہے کہ جس میں
خامد بھی دفن ہے، باپ بھی دفن ہے، جب تک وہ دونوں وہاں موجود تھے جایا کرتی تھی، پردے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ تو دفن ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جب اسی حجرہ عائشہ میں رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے تو اس حجرے میں بھی کبھی بغیر پردے کے نہیں گئی۔ اتنی احتیاط اماں جی کی کیوں؟ ام المومنین تھی، اور اماں جی نے اسی لیے تو کہا تھا، جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی کہ 9 خصوصیات ایسی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی، جو صرف اماں جی کے نصیبے میں آئی، قسمت میں آئی۔ سب سے پہلی 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، سب سے پیاری بیوی تھی، اور آپ کی تصویر خود لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دکھائی تھی۔ واحد بیوی ہیں جو کنواری ہیں، اور یہ وہ بیوی ہیں جن کے بستر پہ وحی نازل ہوتی تھی، یہ وہ بیوی ہیں جن کی شان میں قرآن کی سورۃ نور کی 10 آیات نازل ہوئی، یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور یہ وہ بیوی ہیں جب کائنات کے سردار، اس کائنات کی سب سے بہترین ہستی اس دنیا سے گئے تو ان کا سر ان کے سینہ مبارک پہ تھا۔ یہ 9 خصوصیات جو کسی اور کو نہیں ملی۔ پچھلے جمعے میں نے کچھ ان کی احادیث کا تذکرہ کیا، کیونکہ 2210 احادیث کی وہ راویاں ہیں، ساری تو بیان نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے ایک تصویر آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ان کو قرآن کی تفسیر پہ عبور حاصل تھا، ہر آیت کی تفسیر جانتی تھی، جس مسئلے میں صحابہ کو مشکل پڑتی تھی آپ سے آ کر پوچھتے تھے، آپ کے شاگرد تھے، آپ ان کو علم دیتی تھی، اور احادیث کی میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تھی کہ صحابہ کو تو صرف یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ حدیث ہے، اماں جی کو کیونکہ وہ رازدان نبوت تھی، اماں جی کو یہ بھی پتا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کی ہے، اس کی علت بھی بیان کرتی تھی۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو دستی کا گوشت ہے وہ آپ کو بہت پسند تھا، صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، اماں جی نے بتا دیا دستی کا گوشت کیوں پسند تھا، اس لیے پسند تھا کہ وہ جلدی پک جاتا تھا۔ اتنی گہرائی میں کون جا سکتا ہے؟ یقیناً یہ وہی جا سکتا ہے جو نبی کے گھر میں رہتا ہو۔ اسی لیے تو اللہ نے منتخب کر لیا، 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد ہو گیا، آپ کے پاس چلی گئی، یوں سمجھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کوئی اور کہیں وہ جا ہی نہیں سکی۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے نا، 18 سال کی عمر میں یہ بیوہ ہو گئی، 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی، 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، 18 سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مرض ہے جو آخری آپ کو مرض لگانا 13-14 دن اس میں آپ بیمار رہے، اور 13-14 دنوں کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک سفر سے واپس آئے، آپ کو سر میں درد ہوا، اسی بیماری سے آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ جو آخری ہفتہ آپ کا گزرا نا،
بات سنانی ہے اس آخری ہفتے کی، اور تذکرہ مقصود ہے اماں جی کی عظمت کا، اماں جی کی رفعت کا، اماں جی کی بلندی کا، اماں جی کی شان کا۔ جس طرح آج لوگ منافق موجود ہیں، اس طرح اس زمانے میں بھی منافق موجود تھے جو اماں جی کی شان کو گھٹانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی شان قیامت تک سورۃ نور کی شکل میں، قرآن کی شکل میں محفوظ کر دی ہے۔ آخری ہفتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، روز پوچھتے ہیں آج میری باری کدھر ہے، آج میرا سٹے کہاں پہ ہے، آج کس بیوی کے گھر میں نے رہنا ہے۔ حالانکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ آج میں نے کس گھر میں جانا ہے، آج میں نے کدھر رات بسر کرنی ہے، لیکن بار بار پوچھ رہے ہیں۔ بیویوں نے رازدان تھی، سمجھ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ حضرت عائشہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چلے گئے حضرت عائشہ کے گھر میں، آخری پورا ہفتہ سٹے کیا، وہاں پر وہ باتیں ارشاد فرمائی جو اماں جی نے ہمیں بتائی۔ 7ویں دن آپ نے، جب آپ اس دنیا کے جانے سے 7 دن پہلے آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد گاہ بنا لیا، وہاں پر مسجدیں بنا لی، وہاں پر سجدے کرنا شروع کر دیے، اور اپنی امت کو تلقین کی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا، عائشہ کے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کے بدلے دے دیے سوائے ابو بکر کے۔ کہا اگر میں نے دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل بنا چکا ہوں۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت رگ و ریشے میں سرایت کر جاتی ہے، اس کے علاوہ جگہ ہی کوئی نہیں بچتی۔ کہا میں خلیل اپنے رب کو بنا چکا ہوں، اگر دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اتنے احسان ہے۔ کہا مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ یہ اس کے احسانوں کا بدلہ آپ دنیا میں دے کر گئے۔ پھر آپ کی زندگی گزر رہی ہے، 4 دن باقی ہیں، جب عشاء کی نماز کا وقت ہے، اماں جی پاس ہیں، یہ ساری باتیں اماں جی نے ہمیں بتائی ہیں۔ اتنا حافظہ ان کا تیز تھا، جب آپ 8 سال کی تھی نا، 9 سال کی، اس وقت ہجرت مدینہ ہوئی، ہجرت مدینہ کے جتنے واقعات ہیں وہ سارے اماں جی نے بیان کیے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا واقعہ افق، وہ بھی اماں جی نے بیان کیا ہے، کتنی ڈیٹیل ہے اس میں۔ آج کا کوئی کالم نگار، آج کا کوئی مفکر بھی اتنی ڈیٹیل سے کوئی واقعہ بیان نہیں کر سکتا جتنی ڈیٹیل سے اماں جی نے وہ بات بتائی۔ تو 4 دن پہلے عشاء کا وقت ہے، جماعت کا ٹائم ہے، صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو غشی کا دورہ پڑ گیا ہے، آپ کو ہوش آتی ہے، آپ نے پوچھا عشاء کی جماعت ہو گئی ہے؟ میں بات مختصر کروں گا۔ کہا گیا آپ کا انتظار ہے۔ آپ نے پھر غسل کیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر غسل کیا، پھر آپ نے کہا عائشہ اپنے بابا کو کہو وہ جماعت کرائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 جماعتیں کروائیں، 17 جماعتوں کی امامت کروائی۔ اور آخری دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں تو آخری دن سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
आपने उनको लिटाया हुआ है और आप क्या कर रही हैं? जितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतें बताई हुई थी सारी पढ़ पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दम करती जा रही हैं। आखिरी 2 सूरतें कुरान मजीद की वो भी पढ़ रही है, दुआएं भी पढ़ रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ भी उनके जिस्म पर फेर रही है, ये सारी दुआएं पढ़ती जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा मेरी बेटी फातिमा को बुलाया जाए। ये आखिरी दिन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का। फातिमा को बुलाया गया, आपने कान में बात कही, वो रोना शुरू हो गई, फिर बात कही, वो हंसना शुरू हो गई। अम्मा जी ने पूछा, ऐ बेटी, हजरत फातिमा के साथ हजरत आयशा बड़ा प्यार करती थी, मेरे पास वक्त नहीं, मैं आपको मिसालें सुनाऊं, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका आया बताऊंगा। अम्मा जी हजरत फातिमा से कितनी मोहब्बत करती थी। कहा, फातिमा बताओ आपके बाबा ने क्या कहा? कहा, नहीं, ये मेरे और बाबा के राज की बात है, मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन अम्मा जी को ज़हन में था ये मैंने बात पूछनी है। जब आप इस दुनिया से चले गए ना, फिर आपने पूछा कि फातिमा अब तो बता दो, आपके बाबा तो दुनिया से चले गए, अब बता दो। तो फिर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, पहले जब उन्होंने मेरे कान में बात की ना, वो उन्होंने कहा, ऐ फातिमा तेरे बाबा के अब दुख सारे दूर होने वाले हैं, तेरा बाबा इस दुनिया से अब जाने वाला है। जब उन्होंने ये बात कही तो मैं रोना शुरू हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, फातिमा मेरे खानदान में सबसे पहले तू आकर मुझे मिलेगी तो मैं हंसना शुरू होगी। और वही बात हुई, 6 महीने बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से चली गई। तो ये आखिरी दिन है, हजरत फातिमा को बुलाया, बकाया अज़वाज मुतहरात को बुलाया, अब हसन हुसैन को बुलाया, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, उनको वसीयतें की। और आखिर में क्या बात हुई जब आप इस दुनिया से गए? हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, ये आपका बेटा है, अबू बकर का बेटा है, आपका भाई है, वो मिसवाक लेकर आया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक देखा ना, कहती मैं समझ गई कि आप मिसवाक करना चाहते हैं। उनसे मिसवाक लेकर खुद अपने दांतों से नरम करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और वो फख्र से कहा करती थी कि मुझे फख्र है कि जाते हुए भी मेरा लुआब नबी के लुआब से मिल गया। मिसवाक खुद नरम करके दिया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, आपका सीना आपकी छाती पे था और आप कह रहे थे, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम अल्लाहुम्मर रफीकुल आला, अल्लाहुम्मर रफीकुल आला, अल्लाहुम्मर रफीकुल आला। और मैं ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हफ्ता हजरत आयशा के घर रहे, मैंने इस पे सोचो विचार किया, ये आप इस घर में क्यों रहे हैं? तो मुझे वजह समझ आ गई। जब आप दुनिया से गए ना, अब मसला ये पैदा हो गया कि आपको दफन कहां पे किया जाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि नबी जहां पे फौत होते हैं उनको वहीं पे दफनाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा में गए इसलिए थे ताकि मैं दुनिया से जाऊं तो आयशा के हुजरे में मुझे दफन किया जाए। जाते हुए भी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रफाकत और फिर उन्हीं के हुजरे में दफन हुए। उसके बाद क्या हुआ, ये आप बेवा हो गई 18 साल की उम्र में। फिर आपके बाबा का दौर आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 2 साल का दौर है। 2 साल उनके साथ रही, वक्त गुजरता गया। जब बाबा भी जाने लगे ना, तो एक बात बाबा की भी सुन ले।
जब जाने लगे ना तो कहा हजरत अबू बकर ने, ये है सच्चे फॉलोअर, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं इनके बारे में, ये सच्चे फॉलोअर हैं। कहा बेटी मुझे एक बात बताओ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए तो दफन में कितनी चादरें थी? कहा 3 चादरें थी। वो तो मरते हुए भी ये सोच रहे हैं कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए हमने भी उसी तरह जाना है, इतना वो फॉलो करते थे। तो हज़रत अबू बकर कहते हैं, ये एक जो सूट मैंने पहना हुआ है, एक तो ये चादर हो गई, 2 चादरें और बना लेना। और वसीयत क्या की? कहा बेटी जब मैं दुनिया से जाऊं ना, यही जो कपड़े हैं ना, इनको साफ करके धो के मेरा कफन बना देना। नया कफन ना लेना, नए कपड़े जिंदों को अच्छा लगते हैं, मुर्दों को पुराने कपड़े ही अच्छे लगते हैं। ये बाबा जब इस दुनिया से गए, आपकी उम्र 20 साल थी, 18 साल में बेवा हो गई, 20 साल में यतीम भी हो गई। फिर दौर आया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, 10 साल का उनका दौर है। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जाने लगे, उससे पहले उन्होंने क्या किया? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अज़वाज मुतहरात का बड़ा ख्याल रखते थे। 9 बीवियां आपकी हयात थी, उन्होंने हर बीवी का 10-10 हजार दिरहम वजीफा रखा हुआ था। हजरत आयशा का 12,000 वजीफा रखा हुआ था। पूछा गया 12,000 क्यों रखा है? कहा यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी है, इसलिए वजीफा 12,000 है। 9 प्याले रखे हुए थे, कहीं से भी तोहफा आता सबसे पहले अज़वाज मुतहरात को भेजते। आज उनको शहीद कर दिया गया है। अबू लोलो फेरोज ने शहीद किया है आपको, और आप क्या कह रहे हैं? जब आपको पता चल गया अब मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं जाओ अम्मा जी के पास। उनकी ख्वाहिश तो थी, कभी इजहार नहीं किया। कहा अम्मा जी के पास जाओ, उन्हें कहो जो एक जगह पड़ी हुई है ना हुजरा आयशा में, मुझे वहां दफन होने की इजाजत दो। वो जब आए अम्मा जी के पास, अम्मा जी ने कहा वो तो मैंने अपने लिए रखी हुई है, लेकिन उमर ने मेरे ऊपर एहसान बड़े किए हैं, और जो सबसे बड़ा एहसान है उसका तस्करा मैं आगे करूंगा, इसलिए उमर को कहो उसकी ख्वाहिश पूरी की जाती है। मैं कुर्बानी देती हूं। कितनी बड़ी कुर्बानी है, अपने लिए जगह रखी हुई है। हजरत उमर ने मांगी है, दे दी। उधर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखें, उन्होंने अपने बेटे को क्या कहा? कहा बेटा ये उन्होंने अभी इजाजत तो दे दी है, हो सकता है अभी मैं अमीरुल मोमिनीन हूं इसलिए इजाजत दी हो, तुमने एक काम और करना है, जब मैं मर जाऊं चला जाऊं, मेरी मैयत लेकर फिर एक दफा वहां पहुंच के फिर दोबारा पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है अभी अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से इजाजत दे दी हो, फिर जब मैं मर जाऊंगा अमीरुल मोमिनीन तो नहीं होगा, फिर इजाजत लेना। बेटे ने उसी तरह किया। फिर अम्मा जी से पूछा, अम्मा ने कहा नहीं इजाजत है। फिर आया हजरत उस्मान का दौर, 12 साल का यह दौर है। इस दौर में 6 साल तो बड़े अच्छे गुजरे, फिर 6 साल बड़े मुश्किल गुजरे। बहरहाल आप जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, आप हज करने गई हुई थी, क्योंकि आपको मैंने पिछले जुमे में कहा था, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था औरत का जिहाद क्या है? आपने कहा था औरत का जिहाद हज है, इसलिए आप हर साल हज करती थी। हज पे गई हुई थी, पीछे से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। फिर 6 साल दौर हजरत अली का आया, उसमें जंगे हुई, अभी वक्त नहीं है कि मैं वो बयान करूं। फिर 6 महीने हजरत हसन के आए। 20 साल दौर हजरत अमीर मुआविया का आया। हजरत अमीर मुआविया के दौर में 18 साल आप जिंदा रही। 67 साल की उम्र में
अमीर माविया के दौरे हुकूमत के 18वें साल में आप इस दुनिया से गईं, और जब आप गईं तो आपने क्या कहा, जाते हुए भी क्या सबक दे के गईं? आपने कहा अगर मैं रात को मर जाऊं ना तो मुझे रात में ही दफन करना है, सुबह का इंतजार नहीं करना, और मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना है। जन्नतुल बकी में दफन किया गया, रात के अंधेरे में दफन किया गया। जनाजा किसने पढ़ाया? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो ये अम्मा जी की मुख्तसर से जिंदगी है। अब इसमें जो असल चीज जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि अल्लाह ताला ने आपकी शान में 10 आयात नाज़िल की, वो वाक़या क्या है? उसको कहते हैं वाक़या इफ़क। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी जंग में तशरीफ लेकर जाते थे तो आप कुरान निकालते थे अपने बीवियों के नाम कि इस जंग में मैं अपनी कौन सी बीवी को साथ लेके जाऊंगा। 6 हिजरी में आप एक जंग में गए, गज़वा बनी अल मुस्तलक उसका नाम है। आपने कुरान निकाला, कुरान निकल आया हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। हजरत आयशा ने तैयारी की, आपने अपनी बहन अस्मा बिनते अबू बकर जो आपकी बड़ी बहन थी उनसे हार उधार लिया कि मैं सफर में जा रही हूं। हार उन्हें पसंद था, हार लिया और वो पहन के चली गई। गज़वा खत्म हो गया, वापसी जब होने लगी तो एक जगह पे पड़ाव डाला गया। अब वो पड़ाव इसलिए होता है कि किसी ने कोई रफ़ा हाजत करनी हो वो कर ले, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। अब जिस ऊंट पे ये सवार थी 3 या 4 सहाबा कराम की ड्यूटी थी। आपकी उम्र 14 या 15 साल थी, दुबली पतली आप थी, तो ऊंट का जो हौदज होता है सहाबा कराम क्या करते थे, उसको उठाना ऊपर रख देना, उसको उठाना नीचे रख देना। जब आराम करने का वक्त होता था वो उठाकर नीचे रख देते थे। आप इतनी कमजोर थे, वजन तो आपका था नहीं, और सहाबा कराम आपकी तरफ देखते थे नहीं। तो हुआ ये कि पड़ाव हुआ, आप रफ़े हाजत करने गई, वापस आई तो आपको पता चला कि मेरा तो हार ही कोई नहीं जो मैंने पहना हुआ है। आप दोबारा गई कि मैं उसी जगह पे जाती हूँ, जाकर अपना हार लेकर आती हूँ। वहां आप गई, अपना हार ढूंढा, वो मिल गया। जब आप वापस आए तो काफिला जा चुका था। सहाबा कराम ने उसी तरह हौदज को उठाया और ऊंट पे रख दिया। उन्होंने ये समझा कि अम्मा जी हमारी माँ इसके अंदर मौजूद है। अब जब आप वापस आई आपने देखा कि काफिले वाले हैं ही नहीं। अब आपने ये सोचा कि मैं इसी जगह पे ठहर जाती हूँ, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि मैं नहीं हूं तो वो वापस इसी जगह पे आएंगे और यहां आकर मुझे तलाश कर लेंगे। अब रात का टाइम था, आप वहां बैठ गई और आप फरमाते हैं, ये हदीस आपने खुद बयान की है, आप फरमाते मैं वहां पे सो गई। जब मैं सो गई ना तो सुबह जब दिन निकला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका कार था कि आप एक सहाबी की ड्यूटी पीछे लगाते थे। वो काफिले के पीछे रहता था ताकि कोई चीज गिर पड़ी है या किसी को कोई मसला बन गया है तो वो उसका मसला हल करे। कहती हैं अब ये जो वाकया है ना, ये पर्दे की आयात नाज़िल होने के बाद का है। अब पीछे जो सहाबी है उसका नाम है सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो जब आए ना तो उन्होंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पर्दे से पहले देखा हुआ था। उन्होंने देखा कि ये तो अम्मा जी हैं, तो उनके मुंह से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे बंदा यकदम हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। अम्मा जी को देखा, अम्मा जी फरमाती है मैंने उसके ये अल्फाज सुन लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो मैं वो अल्फाज जब उन्होंने अदा किए ना, मैं फौरन उठ बैठी और मैंने चेहरे का पर्दा कर लिया। अब ये अल्फाज है बकायदा इस हदीस में, अम्मा जी फरमाती है मैंने चेहरे का पर्दा कर लिया। ये आज के जो जदीद दानिश्वर हैं उनके लिए ये सबूत है
कि औरत का पर्दा चेहरे का होता है। अम्मा जी जो सबसे कोई बात की सारे रास्ते, हत्ता के दोपहर के टाइम मदीना के करीब हम काफले के साथ मिल गए। अब काफला मदीने पहुंच गया। अब सफर की वजह से अम्मा जी कहती है कि मैं पूरा महीना बीमार रही, मैं घर में ही रही, मुझे पता ही नहीं था बाहर हो क्या रहा है। बाहर क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई उसने देख लिया सफवान बिन मुअत्तल हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेके आ रहा है। उसने अफवाह फैला दी, तोहमत लगा दी। अम्मा जी को पता ही कोई नहीं, अम्मा जी घर में है। अब रिट्रोस्पेक्टिवली अम्मा जी फरमाती हैं, जब मुझे सारे वाक़े का पता चला ना, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे साथ वो शफकत ही नहीं थी। पहले जब मैं बीमार होती थी हर वक्त मेरा ख्याल करना, घर से निकलते हुए पूछना, आते हुए पूछना, अब वो मुझे पूछ ही नहीं रहे। महीना गुजर जाता है कि एक दिन मैं, अब इसमें जो मेन किरदार है वो है अब्दुल्ला बिन उबई का, जो रईसुल मुनाफिकीन है, लेकिन 3 मुसलमान भी इसमें शामिल हो गए और वो तीनों बड़े जयद नाम हैं। एक है हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये शायरे इस्लाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शायरी करते हैं। एक है मस्ता बिन असासा, ये हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्तेदार हैं और हजरत अबू बकर ने इनका वजीफा मुकर्रर किया हुआ है। और एक है हमना बिन्त जैश, सहाबिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है ज़ैनब बिन्त जैश, उनकी बहन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली है। ये 2 सहाबा और 1 सहाबिया, ये भी इस मुहिम में शामिल हो गए। इन्होंने भी अब्दुल्ला बिन उबई की बात को सच समझा और यकीन कर लिया और बातें करना शुरू कर दी। अम्मा जी फरमाती हैं, महीने बाद एक दिन मैं रफ़े हाजत के लिए बाहर निकली। टॉयलेट का निजाम तो था नहीं, लोग बाहर ही जाते थे, और मेरे साथ थी मस्ता बिन असासा की माँ। हम दोनों जब बाहर गई, अभी जा ही रही है कि जो मस्ता की माँ है ना, वो कपड़े से अड़कर ना वो गिर पड़ी और उन्होंने अपने बेटे को मस्ता को बद्दुआएं देना शुरू कर दी। मैंने कहा, अम्मा जी क्या कर रही हो? मस्ता तो बदरी साहबी है, उसके बारे में तुम बद्दुआएं कर रही हो। तो उन्होंने कहा, आयशा तुझे मस्ता का पता नहीं है? कहा क्या हुआ? उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया। अम्मा कहती हैं, मुझे रफ़े हाजत करना भी भूल गया। मैं उसी वक्त वापस आई। अब मैंने कहा, अब जब बेटियों को कोई तकलीफ होती, दुख होती है, तो वो कहां जाती है? अपने मेके जाती है। कहा, मैं अपने मम्मा के पास जाती हूँ, बाबा के पास जाती हूँ, पूछती हूँ माजरा क्या है, मुझे बताया भी नहीं गया। कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मुझे घर जाना है। कहा, उन्होंने मुझे रोका तक नहीं, पूछा भी नहीं क्यों जा रही हो, कब आओगी। पहले ये होता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैंने घर जाने की इजाजत मांगनी, कहना क्यों जा रही हो ऐशा, कब आओगी वापस। इस दफा वो पहले से मोहब्बत नहीं थी। कहते मैं वहां घर गई, मैंने अपनी अम्मी से पूछा, उन्होंने मुझे सारी हकीकत बयान कर दी। कहती है, मेरे जो है नींद भी खत्म हो गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। 2 दिन मुसलसल मैं रोती रही, ना मुझे नींद आई ना मेरा रोना बंद हुआ। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान है। आपने हजरत ज़ैद से पूछा, जो आपका मुंह बोला बेटा था, उन्होंने कहा हजरत आयशा के बारे में इस तरह का कोई मसला नहीं। उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, हजरत अली ने मोहब्बत में कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान क्यों होते हैं? आपको कोई औरतों की कमी है? आप किसी और से शादी कर लें। अगर आपने पूछना है तो बरीरा से पूछें। बरीरा कौन थी? आपकी लौंडी थी, साथ ही रहती थी हजरत आयशा के। उनसे जब पूछा गया, वो कहती है मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अम्मा जी जब आटा गूंदती है ना, तो भूल जाती है, वो बकरी आकर आटा खा जाती है। उनके वेद में भी इस तरह की कोई बात नहीं थी। फिर आपने हजरत उमर से पूछा, वो जो मैं उमर की बात कर रहा था ना, कि आके कहा कि मुझे दफन होने का जगह दी जाए,
उनका एहसान ये था। हजरत उमर से पूछा, हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक बात बताएं, ये जो आपका रिश्ता हजरत आयशा से हुआ है, ये आपने खुद किया है या किसी ने करवाया है? कहा नहीं, ये तो अल्लाह ने करवाया है, जिब्राइल तस्वीर लेके आए थे। फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, जो अल्लाह आपके जिस्म पे गंदी मक्खी नहीं बैठने देता, वो आपके बिस्तर पर इस तरह की औरत भरा ला सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे बड़ी तसल्ली हुई। आपने फिर ज़ैनब बिन्त जहश से पूछा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी भी बड़ी तारीफ किया करती थी क्योंकि वो आपके मद्दे मुकाबल थी। तो लेकिन हजरत ज़ैनब ने कहा, नहीं, आयशा में इस तरह की कोई बात नहीं। फिर आप मस्जिद में तशरीफ लाए, आपने खुतबा दिया, आपने कहा अब लोग मेरे घर तक, अहले बैत तक पहुंच गए हैं। आपने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अहले बैत का मेरे घर तक पहुंच चुके हैं, कौन मेरा साथ देगा इनके खिलाफ? तो हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, वो औस कबीले के थे, और जबकि ये अब्दुल्ला बिन उबई खजरज कबीले से था। वो कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो मेरे कबीले से होता तो आज मैं उसको कत्ल कर देता। साद बिन, जो खजरज कबीला है, साद बिन उबादा उसका अमीर था, वो उठा, वो कहने लगा, इस तरह बात ना करो कि तुम कत्ल कर दोगे। वो बात लंबी है, आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सुलह कराई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर गए, हजरत अबू बकर के घर गए, आयशा को बिठाया, खुतबा दिया, कहने लगे, ऐ आयशा, इंसान होने के नाते से गलती हो जाती है, अगर तुझसे गलती हो गई है तो तू तौबा कर ले। अम्मा जी कहती हैं, जो मैं 2 दिन से रो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरा रोना बंद हो गया, आंखें खुश्क हो गई, आंसू नहीं आए। मैंने अपने बाप को कहा, अब्बू जी जवाब दो। बाप कहते हैं, मैं जवाब नहीं दे सकता। मैंने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी आप जवाब दें, उन्होंने भी जवाब ना दिया। तो मैंने अपने खामद मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा हाल तो यूसुफ के बाप जैसा है। कहती, मैं इतने गम में थी, मुझे याकूब अलैहिस्सलाम का नाम भी भूल गया। तो मैंने कहा, यूसुफ के बाप जैसा है। अगर मैं कहूं तो मैंने ये जुर्म किया है तो आपने मान लेना है, हालांकि मैंने किया नहीं है। और अगर मैं कहूं तो मैं सच्ची हूं और वाकई में सच्ची हूं तो आपने मानना नहीं है। इसलिए फसब्रुन जमील, मैं वही अल्फाज कहती हूं जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहे थे कि मैं तो बहुत बड़ा सब्र करती हूं। कहती है, भी ये बात खत्म हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के असरात हुए, वही आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ आयशा, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरी बरात कर दी है। वो 10 आयात नाज़िल हो गई। जब वो नाज़िल हुई ना, तो मेरी वालदा कहती है, ऐ आयशा, जाओ अल्लाह के नबी का शुक्र अदा करो। मैंने कहा, क्यों? मैं तो शुक्र उसका करूंगी जिसने मेरी बरात की है। 10 आयात नाज़िल हुई। जो मैंने आपको पहली आयत पढ़ के सुनाई, उसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इन्नल्लज़ीना जाऊ, बेशक वो लोग जो लाए, बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम, ये बहतान तुम्ही में से वो एक गिरोह है, ये मुनाफिकीन का गिरोह है, तुम्ही में से है। ला तहसबूहु शर्रन लकुम, ये तुम्हारे लिए बुरा नहीं है, बल हुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि कुरान तक क़यामत तक तुम्हारा तज़किरा जारी रहेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म, इसमें जिसने जितना भी हिस्सा लिया इस गुनाह में, उसको उसकी सजा मिलेगी। और ये जो 2 सहाबा और 1 सहाबिया, इनको 80-80 कोड़े लगे क्योंकि इन्होंने तोहमत लगाई
कुरान कहता है अगर तुम जना की तोहमत लगाते हो तो 4 गवाह पेश करो, अगर गवाह पेश नहीं कर सकोगे तो 80 कोड़े लगेंगे, इनको कोड़े लगे। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम, और इनमें से जो सबसे बड़ा है ना, कौन है सबसे बड़ा? अब्दुल्ला बिन उबई, लहू अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। उसको दुनिया में अजाब नहीं दिया गया, उसको अजाब आखिरत में मिलेगा। और आखिरत में अजाब क्या मिलेगा? उसको जहन्नम मिलेगी, और जहन्नम के भी वो सबसे निचले दर्जे में होगा। अल्लाह ताला ने इस आयत में हजरत आयशा की शान बयान कर दी। अगली जो 9 आयत है वो इसी की तफसील है। अल्लाह ताला बार बार मुख्तलिफ अंदाज में अम्मा जी की शान बयान कर रहे हैं। तो ये है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हमारी माँ। उनकी शान में तो पता नहीं कितने जुमे बयान हो सकते हैं। अल्लाह ताला तौफीक देगा, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये तज़किरा होता रहेगा, हम उनकी शान बयान करते रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।